Hi kids, I know that your exams are coming up, so I wanted to do a quick revision of the important topics in every chapter. So we are starting with the immune system. I'll be covering these basic topics. Just a disclaimer, I'll not be covering primary immunodeficiency diseases and AIDS and amyloidosis. I'll put up a separate video for that. Okay. So we know that immunity is of two types, innate immunity and adaptive immunity. Now, this is a NEET PG question. It has been asked before. What are the examples of innate immunity? So, you need to remember this. So, first is your epithelial barriers, that is skin, GIT, respiratory tract, neutrophils and monocytes, your first line of defense. So, these are all your first lines of defense basically. And then dendritic cells, innate lymphoid cells, and plasma proteins. Now, coming to adaptive immunity, it is something that you acquire during your lifetime. It consists of lymphocytes and the products that they produce. So, it is of two types, humoral and cell mediated. Humoral, the word is derived from heme, which means blood. It protects against extracellular microbes and toxins. It is mediated by your B lymphocytes because they will produce antibodies when they become plasma cells, and these are circulating in your blood. So that's a humoral immunity. And then your cell mediated is mediated by your T cells. And we know that there are three types of T cells. I wanted to briefly discuss how every type of immune cell is eliciting its response, okay, whenever there is inflammation or infection. So, for example, B lymphocytes, if you look at this picture, in first picture, B lymphocytes are directly interacting with the microbe and they're becoming plasma cells. Do you see the morphology of the cell has changed? So this cell has the nucleus is a little bit eccentric and has a spoke wheel pattern. And there's this halo, perinuclear halo, which is because of Golgi apparatus. So this is your plasma cell, and now this plasma cell will be producing antibodies. These antibodies will be responsible for phagocytosis of the cell, and they are also activating complement. So whenever there is B lymphocyte mediated infection control involved, your complement will be activated. Okay, remember that. Now coming to T cells are of three types: T helper, T cytotoxic, and your T regulatory cells. T helper are your normal cells which are helping in inflammation and infection. Normal, whenever there is an infection, they come. Cytotoxic are the ones that they kill, they directly cause apoptosis. They're just like NK cells. And then your regulatory T cells, they are responsible for the balance, because we do not want unabashed proliferation of the T cells, because then those T cells are recognizing your self antigens as foreign, and we don't want that. So T cells, T regulatory cells are creating a balance, right? So T helper cells, now these are not, now T cells are not directly interacting with the organism. If you look at the picture, this yellow cell with pseudopodia is your dendritic cell. This is your antigen presenting cell. So this antigen presenting cell has interacted with the microbe first, and this has been phagocytosed by this cell. This is now taking the antigen, the phagocytosed antigen, to the T helper lymphocytes. So T cells are interacting with the antigens when it is already phagocytosed. Okay, this is done with the help of MHC. This is called antigen presentation. So you have to know what is antigen presentation. This is done for T helper lymphocytes or T cytotoxic lymphocytes when your T cells are presented the antigen by another cell called the antigen presenting cells, and this antigen has been phagocytosed by these antigen presenting cells. I hope I'm clear. I hope you understand what is antigen presentation. Now, in response to this antigen presenting cell coming to T lymphocytes with the antigen, your T lymphocytes will release certain cytokines, which will cause activation of macrophages, inflammation, and it will also cause differentiation of T and B lymphocytes. Now, cytotoxic T lymphocytes, when it interacts with the phagocytosed microbe in a cell, it will directly cause apoptosis. Okay, it will directly cause apoptosis. And regulatory T cells is just preventing excessive proliferation. It is maintaining a balance, and just like cytotoxic, NK cells are also directly causing the apoptosis of the infected cell. Now coming to MHC, MHC is an important topic. So MHC molecules are present on, MHC is full form, I hope you know, major histocompatibility complex. So these molecules are present on all the surface of all the nucleated cells of the body. And these molecules are being coded by MHC, major histocompatibility complex, or HLA genes, human leukocyte antigen gene, on your chromosome number 6.
Now this the function of these MHC is the antigen presentation to your T cells. So the specific type of antigen, whenever you have an infection or some allergen or something is coming from outside into your body, the specific type of T cell that is supposed to react will be reacting because MHC is for the specific type of MHC is presenting the cell to presenting the microbe to your cell. Okay, we'll discuss how MHC present the antigen to your T cells. Okay, now MHC is always highly polymorphic because none of any two people will never have the similar MHC. Okay, now coming to the next. Now MHC classification. So that there are two types of MHC, one and two. There sometimes people say MS3 also. You have to know one and two. So these are two divided on the basis of their structure, cellular distribution, and function. Now this is an important question. You have to know why are MHC one and two different. So the cells that they're located at are different. Their structure is different and their function is different. Okay, now let's see at class one. So class 1 is expressed on all the nucleated cells of the body and platelets. All the nucleated cells of the body and platelets, not RBCs. Remember, not the nucleated cells, the only nucleated cells, right? So expressed on all the nucleated cells and platelets. Now, if you look at this picture, it is a heterodimer. You see, there are two chains. Beta 2 microglobulin is just one single chain, it's non polymorphic. Polymorphic means there are many chains, alpha 1, alpha 2, alpha 3. So, alpha is your polymorphic chain. So, alpha is polymorphic, beta 2 is non polymorphic, they are non covalently linked. Your antigen is binding in the alpha 1, alpha 2 cleft. I hope that's clear. This peptide is your basically your antigen ना. Alpha 1 anti 2 sorry alpha 1 anti 2 alpha 1 alpha 2 के बीच में जो cleft है वहां पे your antigen is binding. So class 1 is reacting against your antigens which are located in the cytoplasm, that is reacting against your endogenous antigens. Remember alpha chain had three domains, alpha 1 alpha 2 alpha 3. It was polymorphic. Alpha 1 alpha 2 के बीच में जो cleft है वहां पे क्या antigen लग रहा है और alpha 3 is the binding site for CD8 cells. Now what does that mean? That means कि जो उसका significance क्या है? That means कि एंटीजन है जो आपका जो एंटीजन इन्फेक्ट कर रहा है आपके जो सेल को वो उसके अगेंस्ट क्लास 1 एमएचसी रिस्पॉन्ड करेगी, उस स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट क्लास 1 एमएचसी रिस्पॉन्ड करेगी. दे विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स एंड दिस कॉम्प्लेक्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय CD8 T पॉजिटिव टी सेल्स जो अल्फा 3 के साथ आके लगेंगे. So that means this is called as CD8 T positive cell. CD8 positive T cells are called as MHC class 1 restricted. यानी कि CD8 positive T cells सिर्फ उन्हीं एंटीजेंस को रिस्पॉन्ड करेंगे जो MHC क्लास 1 लेके आएगा उनके पास, क्योंकि MHC का क्या फंक्शन है? एंटीजन प्रेजेंटेशन. तो जो एंटीजन प्रेजेंट MHC एंटीजन प्रेजेंटेशन MHC क्लास 1 एंटीजन प्रेजेंटेशन जो करेगा CD8 पॉजिटिव T पॉजिटिव CD8 पॉजिटिव टी सेल सिर्फ उसी को रिस्पॉन्ड करेंगे. ओके, now briefly okay, let's go to the next slide. Now, if we were to revise class 1 MHC, it was present on all the nucleated cells of the body and platelets. It had polymorphic alpha chain and non-polymorphic beta chain, and it was responding to the endogenous antigens. And CD8 positive T cells were class 1 MHC restricted. These four things you remember about them. Now, class 2. These are expressed on macrophages, B lymphocytes, dendritic cells. So, definitely not all the cells of the body. Macrophages, B lymphocytes, and dendritic cells. And here again, it is a heterodimer, and the alpha and beta chain are non-covalently linked, but both are polymorphic. Alpha ki alpha 1, alpha 2 chain hai, beta ki beta 1. You can see the picture, right? Beta 1, beta 2 pictures. एंटीजन कहाँ बाइंड कर रहा है? अल्फा 1 और अल्फा बीटा 1 की बीच में जो क्लेफ्ट है वहां पे बाइंड कर रहा है. ठीक है, एंड दीज आर प्रेजेंटिंग एंटीजेंस that are first internalized by the cells. So it is responding to exogenous antigens. And again, beta 2 का जो domain है, that is the binding site for CD4. यानी कि CD4 पॉजिटिव टी सेल्स उन एंटीजेंस को रिस्पॉन्ड करेंगे, उनके मतलब अपने जो साइटोकाइंस रिलीज करने उन्होंने, दे विल बी रिस्पॉन्डिंग in response to सिर्फ those antigens which are being presented by class 2 MHC. Okay, क्योंकि MHC का फंक्शन ही है एंटीजन प्रेजेंटेशन. ओके, दिस इज जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू कि टी सेल्स कैसे इम्यूनिटी इफेक्ट करते हैं, कैसे अपना रिस्पॉन्स एलिसिट करवाते हैं, और बी सेल्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं. सो टी जो हमारे हेल्पर सेल्स हैं 3 तरह के होते हैं, 1, 2 और 17. तो 1 का दिस विल बी डिस्कस लेटर ऑल्सो, सो जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दिस. ओके,
T helper 1 cells, they secrete interferon gammas, and the target cells is macrophages, which are this response is in response. This is occurring in response to intracellular pathogens, and this will result in autoimmunity and chronic inflammation में भी यही mechanism का role है. T helper 2 cells interleukin 4, 5 और 13, और T help, just remember T helper जो 2 है ना, 2 है, it is related to eosinophils and allergy. Okay, तो वो एलर्जिक और टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी से रिश्ता है इसका. ठीक है, सो टी हेल्पर 2 सेल्स हैं जो 4, 5 और 13 रिलीज कर रहे हैं. रिमेंबर 13 है ना, और 4 और 5 है, ये सारे eosinophils और एलर्जी. IgE, eosinophils, एलर्जी, टी हेल्पर 2 सेल्स. जस्ट रिमेंबर दीज 4 थिंग्स कि जब भी हमें टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसमें वी नो कि आईजीई एंटीबॉडी का रोल होता है. तो वो हमें पता है, वो एलर्जिक रिस्पॉन्स देती है, और हमें पता है उसमें eosinophils आते हैं. और वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि साइटोकाइंस रिलीज कर रहे हैं. कौन से 4, 5, 13, और कौन से सेल्स रिलीज कर रहे हैं? टी हेल्पर 2 सेल्स. ओके, फिर टी हेल्पर 17 है, वो 17 और 22 रिलीज करते हैं. उसमें न्यूट्रोफिल्स वगैरह ही आते हैं, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस के अगेंस्ट होता है, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोइम्यूनिटी. और बी सेल्स में क्लास स्विचिंग होती है, एंटीजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स भी होता है. क्लास स्विचिंग का मतलब, कुछ वी नो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज हैव टू बी सिक्रेटेड ना. सो नॉर्मली अगर किसी एंटीजन के रिस्पॉन्स में वो आईजीजी सिक्रेट कर रहा है या फिर आईजीएम फर्स्ट टाइम, लेकिन लेट से वो एलर्जिक रिस्पॉन्स देना चाहे, तो क्लास स्विचिंग होगी, क्योंकि अब आईजीई नहीं सिक्रेट होना है. एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी. तो वो एनके सेल्स का फंक्शन होता है, बट वो बी सेल्स के थ्रू जाके होके होता है. Okay, now coming to an important topic, which is hypersensitivity. We were just discussing it only. It is an injurious immune reaction, and they are associated with immunological diseases. तो obviously exogenous antigens के खिलाफ हो सकती है, endogenous antigens के खिलाफ हो सकती है. genetics का usually role होता है, और basically जो effector और control mechanisms है immunity की, उनपे imbalance हो गया. Now types of hypersensitivity reaction, we have 4. नंबर 1 इज योर इमीडिएट टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी, योर इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, जो कि आईजीई. ठीक है, आईजीई वाली, एलर्जिक रिस्पॉन्स वाली. फिर टाइप 2 इज योर एंटीबॉडी मीडिएटेड. टाइप 3 इज योर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इम्यून कॉम्प्लेक्स का मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स दोनों आ गए ना, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, एसएलई वगैरह. फिर टाइप 4 इज योर सेल मीडिएटेड, विच इज योर डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी. और सेल मीडिएटेड है ना, तो दैट मीन्स योर टी सेल्स विल बी इन्वॉल्व, क्योंकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो का जो रोल होता है वो टी सेल्स का होता है, क्योंकि ह्यूमोरल इम्यूनिटी तो बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके करते हैं ना. तो टाइप 4 जो सेल मीडिएटेड यानी कि टी सेल्स का रोल होगा इसमें. वील डिस्कस द 2 टाइप्स ऑफ टी सेल्स जो टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी करता है. Immediate hypersensitivity is your type 1 hypersensitivity. It is rapid immunological reaction because of combination of antigen with antibody bound to mast cells in previously sensitized individuals. What is it saying? It means that the individual was already sensitized with this allergen, specific allergen. We'll discuss the types of allergen. Food हो सकता है, फूड पॉइजनिंग होती है, बी स्टिंग हो सकती है, और पोलन एलर्जी हो सकती है, हे फीवर बोलते हैं जिसे हम. और समटाइम्स ब्लड वगैरह, ब्लड प्रोडक्ट्स वगैरह भी कर सकते हैं. वो फेटल वाली रिएक्शन भी होती है, लोकल भी हो सकती है, सिस्टमिक भी हो सकती है. सो और योर इंडिविजुअल वाज प्रीवियसली सेंसिटाइज्ड टू दिस एलर्जन, दिस स्पेसिफिक एलर्जन. तो उस टाइम पर, जब फर्स्ट टाइम पे एलर्जन आया था, तो आईजीई प्रोड्यूस हुई थी, वो मास्ट सेल्स पे जाके लग गई उस टाइम पर. अब सेकेंड टाइम जब एक्सपोजर हुआ, तो मास्ट सेल्स एक्टिवेट हो गए और डीग्रेनुलेशन हो गया. मास्ट सेल्स के अंदर जो मीडिएटर्स प्रोड्यूस हुए, उन्होंने रिएक्शन किया, जो जिसे हम हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, मोस्टली मीडिएटेड बाय आईजीई एंटीबॉडीज, अक्सर सिस्टेमिक और लोकल के 2 फेज होते हैं, इमीडिएट और लेट फेज. अब जो टाइप 1 है, वो आपकी एलर्जिक रिएक्शन, जिसे हम एलर्जी बोलते हैं, बेसिकली वो ही होती है इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी. अगेन इसमें पिक्चर में अगर आप देख रहे हो, एलर्जन आ रहा है, तो टी हेल्पर 2, रिमेंबर आई टोल्ड यू टी हेल्पर 2 सेल्स हैं. टी हेल्पर 2 सेल्स आके आ रहे हैं, और आईजीई प्रोड्यूस हो रही है बीटा सेल से. क्लास स्विचिंग हो गई है अब, क्योंकि आई एम और जी नहीं हो रहा, ई प्रोड्यूस. इवन दो फर्स्ट टाइम एलर्जन रिस्पॉन्स है, इवन दो एट द एंड ऑफ द डे एलर्जन भी एक एंटीजन ही है, तो फर्स्ट टाइम जो आता है आईजीएम आनी चाहिए, बट यहाँ पे क्लास स्विचिंग हुई है, आईजीई आ रही है फर्स्ट टाइम, इवन दो कि दिस इज द फर्स्ट एक्सपोजर टू दिस पर्टिकुलर एलर्जन. आईजीई प्रोड्यूस की प्लाज्मा सेल्स ने, वो बाइंड करके जा एफसी एप्सिलॉन रिसेप्टर आई होता है मास्ट सेल्स के सरफेस पे, वहां पे जाके लग गया. सेकेंडरी एक्सपोजर
हुआ जब इन IgE कोटेड मास्ट सेल्स का, तो तब आपके मास्ट सेल्स एक्टिवेट हो गए और डीग्रेनुलेट हो गए, तो इमीडिएट और लेट रिस्पॉन्स होता है। तो अब ये लोकल टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन का इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है, फिर लेट फेज रिस्पॉन्स आता है। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है कि जो प्री फॉर्म्ड मीडिएटर्स हैं ऑफ मास्ट सेल्स वो रिलीज हुए हैं, हिस्टामिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स। वो क्या कर रहे हैं, ये वेसोडाइलेटेशन, वेस्कुलर लीकेज, स्मूथ मसल स्पैज्म, ये चीजें आपने इन चीज़ों केमिकल्स और मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन के फंक्शंस यू मस्ट हैव स्टडीड इन फार्मा एज वेल, एंड यू मस्ट हैव स्टडीड इन पैथो एज वेल, चैप्टर 2। लेट फेज रिएक्शन ल्यूकोट्राइन्स और दूसरे साइटोकाइंस की वजह से आ रहा है, तो दे आर इनवाइटिंग मोर डब्ल्यूबीसीज, इओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, एपिथेलियल डैमेज भी हो रहा है और ब्रोंकोस्पाज्म। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आईजीई टाइप 1 की लोकल हो सकती है, जैसे ये लोकल पढ़ रहे हैं हम, सिस्टेमिक के आगे एग्जांपल्स पढ़ेंगे, और माइल्ड भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है, और क्रॉनिक एक्यूट भी हो सकता है। So what is A to P? A to P is an increased propensity to develop immediate hypersensitivity. We don't know कि why the cause is genetic, but usually it is genetic. And 5 or 6 chromosome का थोड़ा relation है because they're next to the HLA complex. एक non-atopic allergy भी होती है, that is उसमें T helper 2 या IG का कोई रोल नहीं होता, that is because of extreme temperatures and exercise. Systemic में वेस्कुलर शॉक, वाइड स्प्रेड इडीमा एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, बिकॉज लैरिंग्स में एडीमा हो जाता है तो पेशेंट को डिफिकल्टी ब्रीदिंग, तो दिस इज अकरिंग हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट को, दे आर ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड। सो दिस हमने ब्लड चढ़ाया या कभी कोई ड्रग्स चढ़ाए हैं, कोई एंजाइम वगैरह चढ़ाया है, या कोई फूड पॉइजनिंग होगी या बी स्टिंग वगैरह हो गया, दीज पेशेंट्स मे गो इन शॉक and even die within an hour. Treatment of anaphylactic shock, I hope you know, and I would like you to comment down below if you know the treatment of anaphylactic shock. Okay, these are the examples of disorders caused by your immediate hypersensitivity. Anaphylaxis है, तो शॉक में चला जाएगा पेशेंट। क्यों शॉक? इफ यू रिमेंबर द चैप्टर ऑफ शॉक, शॉक का मतलब बेसिकली फॉल इन ब्लड प्रेशर, थ्रेडी पल्स हो जाती है, थ्रेडी स्लो पल्स हो जाती है, वीक पल्स। वेस्कुलर डायलिटेशन की, वेसल जब डायलेट हो गए तो ब्लड प्रेशर नहीं मेंटेन हो पा रहा, तो दैट्स व्हाई शॉक, बीपी कम हो गया, शॉक में चला गया पेशेंट, लेरिंग्स में एडीमा हो गया तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। और ब्रोंकियल एस्मा में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की कॉज क्या है? ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स की हाइपर एक्टिविटी होगी, क्योंकि वहां पे जाके इन्फ्लेमेशन और टिश्यू इंजरी बहुत हुई जा रही है। एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस में म्यूकस सिक्रेशन बहुत हो रहा है। जब भी साइनोसाइटिस के पेशेंट्स, यू मस्ट नो समबडी एक्चुअली हैज साइनोसाइटिस, तो दे यूजुअली एवरी टाइम देयर इज अ सीजनल चेंज, देयर म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीजेस। फूड एलर्जीज, वहां पे पेशेंट को वॉमिटिंग डायरिया होगा क्योंकि पेरिस्टाल्सिस बहुत बढ़ गया। Okay, now coming to the type 2 hypersensitivity reaction. Antibodies that react with antigen present on the surface or the extracellular matrix. So they destroy these cells and they trigger the inflammation. So there are three mechanisms. If you look at this picture, there are three mechanisms: opsonization and phagocytosis. So this is your opsonized cell. It is inviting, in the first picture, it is inviting this C3b complement को invite कर रहा है, and this complement is further inviting the phagocytes. Phagocyte के FC receptor से bind कर रहा है, and this phagocyte will obviously phagocytosis करवा देगा, ऑफ करेगा ऑफ दिस opsonized cell. That is one. Second mechanism is complement and FC receptor mediated inflammation. तो जहाँ पे complement की activation हुई है, वहाँ जहाँ पे आपके न्यूट्रोफिल्स आए हैं, तो दे विल इनवाइट कॉम्प्लीमेंट, एंड दैट कॉम्प्लीमेंट विल प्रोड्यूस ये C3a और ये जो C5a है, दे आर नॉट एनाफाइलैक्टोक्सिन, दे आर ऑप्सोनेंस। दीज विल कॉज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का रिलीज करवाते हैं और न्यूट्रोफिल्स के एंजाइम्स रिलीज करवाते हैं। तो जहाँ पे वो सेल्स एक्यूमुलेट हो रहे थे इन्फ्लेमेशन के, उस पे आसपास इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाएगी, टिश्यू डैमेज शुरू हो जाएगा। फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड सेलुलर डिस्फंक्शन, क्लासिक एग्जांपल है इसकी माइस्थीनिया ग्रेविस। तो माइस्थीनिया ग्रेविस आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे फंक्शन होता है, उसका एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, ऐसी माइस्थीनिया ग्रेविस में एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन रही हैं। सो दैट मीन्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जब आपके सिनेप्टिकल वेसिकल से निकल के आया एसिटाइलकोलिन, वहां पे लग नहीं पाएगा क्योंकि वहां पे तो एंटीबॉडी लगी है, तो एक्शन पोटेंशियल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपका माइस्थीनिया ग्रेविस के सिम्टम आते हैं, क्योंकि वो मसल एक्ट नहीं कर पा रही, नर्व पोटेंशियल मसल तक नहीं जा पा रही। और जो टी सेल रिसेप्टर हाइपर थायराइडिज्म की मैकेनिज्म क्या है? टी सेल रिसेप्टर ओवर स्टिमुलेट हो रहे हैं एंटीबॉडीज की वजह से। Okay, these are the examples of your antibody mediated diseases.
अगेन माइस्थीनिया ग्रेविस का याद रखना, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडी बन रही है, इसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं। और हाइपरथायराइडिज्म में टी सेल रिसेप्टर ओवर स्टिमुलेशन हो रही है बिकॉज ऑफ एंटीबॉडी। और पर्निशियस एनीमिया में इंट्रिंसिक फैक्टर जो पेराइटल सेल सिक्रीट करते हैं उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन रही है। और गुड पास्चर सिंड्रोम में बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलाई और लंग एल्वेलाई के अगेंस्ट एक्यूट रिमेटिक फीवर में स्ट्रेप्टोकोकल सेल वॉल एंटीजन वो स्टिमुलेट कर रहा है, उसके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है। तो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स, ओके। Now coming to type 3 hypersensitivity, immune complex mediated, antigen antibody complex mediated. Wherever they get deposit, क्योंकि एंटीबॉडी ब्लड में है, वहां पे जाके एंटीजन आया तो उससे कॉम्प्लेक्स बन गया। समटाइम्स जहाँ पे एंटीजन है वहां पे उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी वहां पे भी जा सकती है, तो इन टू इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन भी हो सकता है, बट यूजुअली सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। अब जो जिन एंटीजेंस के अगेंस्ट बन रही है दैट कैन बी एक्सोजेनस, एंटीजेनस, और इम्यून कॉम्प्लेक्सेस लोकल और सिस्टेमिक भी हो सकते हैं। सिस्टेमिक की जो क्लासिक एग्जांपल है वो सीरम सिकनेस है, और लोकल की जो क्लासिक एग्जांपल है वो आर्थस रिएक्शन है, ठीक है। सिस्टेमिक इम्यून कॉम्प्लेक्स सीरम सिकनेस इज द प्रोटोटाइप ऑफ दिस। उसमें क्या बन रहा है, देखो इस फोटो में, फोटो थोड़ी कट गई है इसमें। पहले इम्यून कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो ये जो गोल गोल है दैट इज योर ब्लड वेसल, प्लाज्मा सेल्स ने एंटीबॉडी रिलीज किया ब्लड में। अब एंटीजन और एंटीबॉडी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स बना ब्लड में, फिर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ने सेल्स को, इम्यून कॉम्प्लेक्स वहां पे डिपॉजिट हो गया और इन्फ्लेमेटरी सेल्स आए, इन्फ्लेमेटरी सेल आए और यहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेशन हो गया और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गई, ठीक है। अब लोकल इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन की क्लासिक एग्जांपल है आर्थस रिएक्शन। ये यूजुअली एक्सपेरिमेंटल माना जाता है, क्यूटेनियस रिस्पॉन्स होता है, बेसिकली टिश्यू नेक्रोसिस हो जाता है बिकॉज ऑफ वेस्कुलाइटिस। Examples of immune complex mediated diseases थोड़ा कट गया है, but the classic examples are SLE, your PSGN, polyarthritis nodosa, reactive arthritis, and serum sickness and arthritis reaction. Now coming to type 4 type hypersensitive reaction, delayed type, इसी की एक टाइप है, टी सेल मीडिएटेड है, यानी कि CD8 पॉजिटिव टी सेल्स किल करेंगे सेल्स को, और CD4 पॉजिटिव सेल्स इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे बाय रिलीजिंग साइटोकाइंस, ठीक है। अब CD4 पॉजिटिव टी सेल मीडिएटेड जो इन्फ्लेमेशन दैट इज एक्चुअली द डिलेड टाइप, बिकॉज जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो 24 to 48 आवर्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीजन आ रहा है, एंड दिस इज अ प्रीवियसली सेंसिटाइज्ड इंडिविजुअल। तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। तो पहले है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, antigen, they brought the antigen to CD4 positive T cells, and CD4 positive T cells in response secreted some cytokines which led to the differentiation TH1 और TH17। अब डिफरेंशिएटेड इफेक्टर टी सेल्स ये 1 और 17, क्योंकि 2 तो रिमेंबर हाइपर टाइप 1 सेंसिटिविटी इमीडिएट वाली में है, तो 1 और 17 बचे, तो 1 और 17 टाइप 4 में है। तो 1 और नाउ दे विल डू देयर ओन फंक्शन दैट वी ऑलरेडी डिस्कस। टी हेल्पर 1 ने क्या करना था, इंटरफेरॉन गामा और माइक्रोफेज एक्टिवेशन करना था, और टी हेल्पर 17 में 17 और 22, और वो भी इन्फ्लेमेशन प्रमोट करता है सेल्स और डब्ल्यूबीसीज को रिक्रूट करता है। अब इसकी डिलेड टाइप 4 जो है हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन है कॉज्ड बाय CD4 पॉजिटिव टी सेल्स, उसकी दो एग्जांपल्स हैं, डीटीएच की ट्यूबरकुलम रिएक्शन एंड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। नाउ ट्यूबरकुलम रिएक्शन इज बेसिकली इंट्राडर्मल इंजेक्शंस होते हैं। I hope you've read the types of injections in your journal pharmacology. So there's something called as intracutaneous or intradermal injections. So what they do is they inject purified protein derivative of the tuberculin antigen into a previously sensitized individual. तो इन ड्यूरेशन आती है साइट ऑफ इंजेक्शन पे 8 to 12 आवर्स में, इट पीक्स विद इन 24 आवर्स to 72 आवर्स एंड स्लोली सबसाइड्स। सो बेसिकली वहाँ पे T4 एट द साइट ऑफ इंजेक्शन T4 CD4 पॉजिटिव टी सेल्स आ रहे हैं और मैक्रोफेजेस आ रहे हैं, ये दोनों मोनोन्यूक्लियर सेल्स हैं, और वो अराउंड ब्लड वेसल्स आ रहे हैं, तो उसको पेरीवेस्कुलर कफिंग। धीरे 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 कुछ हफ्तों तक, 2-3 हफ्तों तक दीज मैक्रोफेजेस विल बिकम एपिथेलॉइड सेल्स, एंड देन देयर विल बी जॉइंट सेल फॉर्मेशन एज वेल, तो प्रॉपर ग्रैन्युलोमा बन जाता है। दिस रिमेंबर के इफ एनीबडी आस्क्स यू के जो ट्यूबरकुलोसिस के ग्रैन्युलोमा में यू हैव दिस जायंट सेल एंड देन यू हैव एपिथेलॉइड सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो जो एपिथेलॉइड सेल्स हैं दे आर बेसिकली योर मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस ओनली। आई होप you'll remember that. Again, contact dermatitis is another example of this. So इसकी CD8 पॉजिटिव टी सेल जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं वो भी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट रिएक्ट करेंगे एंड दे विल किल देम, और परफोरन्स और ग्रैंजाइम्स का रोल होता है और ग्रैन्यूल्स होते हैं सीडी टॉक्सिक साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स के अंदर भी।
टी सेल mediated जो diseases है rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, type 1 diabetes mellitus, IBD, psoriasis और contact dermatitis. I have not discussed SLE here. The reason being, I have made videos on clinical features, autoantibodies, and lupus nephritis, the renal changes in SLE. बाकी दोनों पे नहीं बनाई, but let me know if you need those. But I think SLE fairly simple मैंने कर दिया. You can revise it. Now, coming to Sjogren syndrome, chronic disease, dry eyes, dry mouth. Now, dry eyes, this you have to remember this. Keratoconjunctivitis, सिक्का name में ही है. Kerato is your cornea, conjunctivitis for your conjunctiva. सिक्का is for dryness. तो keratoconjunctivitis सिक्का. Dry mouth, zero stomia. Stomia is an opening. So mouth के लिए stomia and zero is again dryness. So this is resulting because immune mediated destruction हो रहा है lacrimal and salivary glands का, resulting in dry eyes and dry mouth. It can be primary and secondary. Primary isolated है, less common है. Secondary form most common है, more common than primary है, and it is associated with other autoimmune disorders. And most common autoimmune disorder that it is associated with is rheumatoid arthritis. SLE, scleroderma, mixed connective tissue और autoimmune thyroid disease के साथ भी associated हो सकता है. हो क्या रहा है, जहाँ पे ग्लैंड्स हैं तुम्हारे लिक्राइमल और स्लेवरी ग्लैंड्स में लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, एंड दैट इज इवेंचुअली कॉजिंग फाइब्रोसिस. एंड मेनली जो लिम्फोसाइट्स हैं वहाँ पे CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं, कुछ बी सेल्स भी हैं और कुछ प्लाज्मा सेल्स भी हैं. और RA फैक्टर मिलता है 75% पेशेंट्स में, ANAs भी मिलते हैं, बट मोस्ट जो स्पेसिफिक है 90% पेशेंट्स में मिलता है वो एंटीबॉडीज अगेंस्ट SSA-A एंड SSA-B. दीज आर बोथ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स, ओके, रो एंड ला. एंड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, ओल्डर फीमेल्स है 50 to 60 ईयर्स में, और केरेटोकंजक्टिविटिस की वजह से ब्लड विजन, बर्निंग सेंसेशन, इचिंग, थिक सिक्रीशंस एक्यूमुलेट करेंगे कंजक्टिवल सैक में. जीरोस्टोमिया की वजह से, ड्राई माउथ की वजह से डिफिकल्टी स्वॉलिंग होगी सॉलिड फूड, डिक्रीज इन टेस्ट, क्रैक्स, फिशेज इन माउथ, ड्राइनेस ऑफ बक्कल म्यूकोजा. पेरोटिड ग्लैंड इनलार्जमेंट में मिल सकते हैं काफी पेशेंट्स में. ड्राइनेस ऑफ नेजल म्यूकोजा, एपिस्टेक्सिस, रेकरेंट ब्रोंकाइटिस एंड न्यूमोनाइटिस. और एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं 1/3 पेशेंट्स में, यानी कि जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, नर्व्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, या लंग्स. तो साइनोवाइटिस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और पल्मोनरी फाइब्रोसिस. अब जो हमने लूपस नेफ्राइटिस में पढ़ा था SLE में ग्लोमेरुलर लीजन्स टाइप 1 to टाइप 6, वो इसमें नहीं होती, पर इसमें ट्यूब्यूलर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकता है, जो कि RTA, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस. यू विल रीड द टाइप ऑफ RTA इन फ्यूचर. तो RTA या फिर यूरिया या फिर फॉस्फेटोयूरिया, मतलब यूरिक एसिड या फॉस्फेटिन. एंड 60% पेशेंट्स में दूसरा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होगा एसोसिएटेड, यानी कि सेकेंडरी फॉर्म में प्रेजेंट करता है ज़्यादा, एंड मोस्ट कॉमनली रूमेटॉइड आर्थराइटिस. Okay, there's something called as Mikulicz syndrome. That means lacrimal and salivary gland enlargement due to any cause. Sarcoidosis हो सकता है, IG4 related diseases हो सकता है, lymphomas हो सकता है, कोई और tumors. This is Mikulicz syndrome. Now coming to systemic sclerosis, scleroderma, I've discussed it very, very briefly. Characterized by chronic inflammation, autoimmunity. Remember, autoimmunity always is chronic only. Okay, there is no such thing as acute autoimmunity. Autoimmunity means chronic inflammation. Widespread damage to small blood vessels and progressive interstitial and perivascular fibrosis in mainly skin and multiple organs. This is in brief pathogenesis. Photo cut. Okay, clinical presentation. What have you learned from SLE, Sjogren or scleroderma? Clinical presentation के बारे में कि these autoimmune disorders are more common in older females, right? और स्क्लेरोडर्मा में स्ट्राइकिंग क्यूटेनियस चेंज होता है, नोटेबली स्किन फाइब्रोसिस, दैट इज नंबर 1 थिंग. नंबर 2 इज रेनॉल्ड फिनोमिना मिलेगा. क्यों? क्योंकि एंड आर्टरीज हैं, जो आपकी एक्सट्रीमिटीज की जो एंड आर्टरीज हैं टोज की फिंगर्स पे, वहां पे वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है एपिसोडिक, मतलब रुक रुक के हो रही है, बिकॉज ऑफ विच नम्बनेस एंड टिंगलिंग. And this Raynaud phenomena almost occurs in every patient and sometimes precedes other symptoms in 70% patients. Patients को dysphagia भी होगा, esophageal fibrosis की वजह से, एंड इट्स रिजल्टेंट हाइपोमोटिलिटी भी होगी. फिर इवेंचुअली इसोफेजियल वॉल इतनी डिस्ट्रॉय हो जाएगी कि एटोनी और डायलिटेशन हो जाएगी, एंड पेरिस्टालसिस नहीं हो पाएगा ना, पेशेंट खाना नहीं खा पाएगा, डिस्फेजिया. फिर अब्डोमिनल पेन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, फिर माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्वमेंट इंडिकेट करता है. अब जहाँ पे माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है वहाँ पे वेट लॉस और एनीमिया तो हो गई. बाकी प्रोटीनूरिया इन्वॉल्व हो सकता, मतलब प्रोटीनूरिया हो सकता है, रीनल इन्वॉल्वमेंट, रीनल फेलियर भी हो सकता है, फिर परमानेंट इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, डिफिकल्ट ब्रीदिंग और मायोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट, कार्डियक फेलियर भी हो सकता है. Next topic is your graft rejection. A major barrier to transplant is the process of rejection, जिसमें recipient's immune system will recognize the graft as foreign and attacks it. Immunologically mediated होती है transplant rejection. Mechanism क्या है? Basically आपकी जो T cell
और एंटीबॉडीज, वो ग्राफ्ट एंटीजेंस के अगेंस्ट रिएक्ट करेंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे इनको. एलोग्राफ्ट है व्हेन ग्राफ्ट इज एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ द डिफरेंट सेम स्पीशीज. डिफरेंट स्पीशीज होता है तो जीनोग्राफ्ट होता है, और एक आइसोग्राफ्ट भी होता है. रिकग्निशन ऑफ ग्राफ्ट, पहले सेल्स और लिम्फो एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइज करेंगे इन एलोग्राफ्ट को, फिर उनके खिलाफ इम्यूनिटी मीडिएट करेंगे, मतलब दे विल क्रिएट एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट दीज ग्राफ्ट्स. Recognize, because why are they recognizing them? Because there is difference in HLA alleles. हर पेशेंट का HLA डिफरेंट होता है. We've discussed this before. ठीक है. डायरेक्ट रिकग्निशन है कि ग्राफ्ट एंटीजेंस आर प्रेजेंटेड डायरेक्टली टू द रिसिपिएंट टी सेल्स बाय ग्राफ्ट के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. और इनडायरेक्ट क्या है कि होस्ट के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उसको होस्ट टी सेल्स के पास लेके जा रहे हैं. ठीक है. At the end of the day, both pathways will lead to the activation of CD8 positive T cells and CD4 positive T cells. CD8 positive हम पता है directly वो तो cytotoxic and they'll kill the cells, and CD4 positive we know that they will produce cytokines. ठीक है. Remember the direct pathway is for cytotoxic T cell lymphocyte mediated acute rejection, and indirect pathway is because of your CD4 positive T cell mediated chronic rejection. Patterns. So it can be hyperacute, acute, and chronic based on the clinical and pathological features. Hyperacute is because of preformed antibodies specific for the antigens are already present on the graft endothelial cells. So these can be natural IgM antibodies specific for the blood group antigens, or maybe specific for MHC molecules, and these are induced by prior exposure through blood transfusion, pregnancy, or organ transplantation. So this is occurring immediately after the graft is implanted and the blood flow is restored. The antibodies immediately bind करेंगे graft के vascular endothelial vessels पे, and they complement को activate करेंगी, और वहाँ पे और भी inflammation होएगी, और WBCs को बुलाया जाएगा, endothelial injury होगी, thrombosis बनेगा, necrosis हो जाएगा. This is usually rare because we do the cross matching before. That is, every donor and recipient are first matched. हाइपर एक्यूट, तो इसमें मोर्फोलॉजिकली क्या मिलेगा? योर अफेक्टेड किडनी. सो दिस हाइपर एक्यूट, एक्यूट एंड क्रॉनिक इज बेस्ड ऑन किडनी की फीचर्स, को यूजुअली किडनी ट्रांसप्लांट्स आर वेरी कॉमन. तो उसके बेसिस पे ये हाइपर एक्यूट, एक्यूट और क्रॉनिक पैटर्न्स बनाएंगे ग्राफ्ट रिजेक्शन के. जो हाइपर एक्यूट में किडनी क्या हो रही है? साइनोटिक, मोटल्ड और एन्यूरिक. एन्यूरिक मतलब यूरिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा, एंड सारे आर्टरीज और आर्टरीज में फिब्रिड और नेक्रोसिस हो रहा है. इवेंचुअली वहाँ पे कंप्लीट ऑक्लूजन हो जाएगा क्योंकि थ्रोम्बोसिस बन गया, और वहाँ पे बहुत सारे WBCs न्यूट्रोफिल स्पेसिफिकली आ रहे हैं क्योंकि हाइपर एक्यूट है within arterioles, glomeruli and peritubular capillaries. ये इंटेंस होता जाएगा, इवेंचुअली नेक्रोसिस हो जाएगा और किडनी नॉन फंक्शनल हो जाएगी और रिमूव करनी पड़ेगी. Acute, mediated by T cells and antibodies that are activated by alloantigens in the graft. It takes days or weeks after transplant and is the principal cause of early graft failure. May appear months or years later also after tapering of the immunosuppression. You know that transplant patients have to be put on immunosuppression exactly because of this. Now, CD8 positive cytotoxic lymphocytes may directly destroy the graft cells, or CD4 positive T cells, they secrete cytokines, they will induce inflammation, which will in turn damage the graft. वही CD4 पॉजिटिव और CD8 पॉजिटिव का मैकेनिज्म तो वही रहना है. CD8 पॉजिटिव ने डायरेक्टली किल करना है और CD4 पॉजिटिव ने इन्फ्लेमेशन के थ्रू किल करना है साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करके. अब एक्यूट की मैकेनिज्म क्या है? एक्यूट टी सेल मीडिएटेड हो सकती है, एक्यूट एंटीबॉडी मीडिएटेड हो सकती है. मतलब हीमोरल वाली भी हो सकती है और सेलुलर वाली भी हो सकती है. अब सेलुलर वाली में रिस्पॉन्स क्या आता है? ट्यूबुलर इंटरस्टिशियल पैटर्न है टाइप 1 और वेस्कुलर टाइप 2. और फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड भी हो सकती है, वेस्कुलर या हीमोरिक रिजेक्शन. वहाँ पे जो डैमेज है वो एंटीबॉडीज की वजह से हो रहा है, और ग्लोमेरुलाई और स्मॉल ब्लड वेसल्स डैमेज हो रहे हैं. वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है उनकी, और डिपोजिशन हो रही है कॉम्प्लीमेंट की, और फिर कॉम्प्लीमेंट और एंटीबॉडीज को लेकर कॉम्प्लीमेंट और इन्फ्लेमेशन प्रमोट करता है. Chronic rejection, indolent form of graft damage that occurs over months or years, leading to progressive loss of graft function, manifest as fibrosis and gradual and arterial sclerosis. And these are both caused by T cells, and which secrete cytokines and cause proliferation and activation of fibroblast and smooth muscle cells. Antibodies भी cause कर सकती हैं ये. बेसिकली यहाँ पे वेस्कुलर चेंजेस होंगी विच आर कॉजिंग थिकनिंग, और मतलब डुप्लीकेशन हो जाएगी बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ किडनी की और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की, एंड वेस्कुलर ऑक्लूजन.
अब ट्रांसप्लांट ऑफ हिमेटोपोटिक स्टेम सेल्स, उसकी ट्रांसप्लांट क्यों चाहिए, हिमेटोपोटिक इंडिकेशंस क्या है, हिमेटोलॉजिकल मेलिग्नेंसी, बोन मैरोफिलिया सिंड्रोम, जैसे प्लास्टिक एनीमिया, या फिर इनहेरिटेड डिफेक्ट्स लाइक सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया एंड इम्यूनोडेफिशिएंसी स्टेज की वजह से. अब ये these were obtained from the bone marrow, but now they are harvested from peripheral blood after they are mobilized from the bone marrow by administration of hematopoietic growth factors or for the umbilical cord blood of newborn infants, which is a rich source of hematopoietic stem cells. Now, graft versus host disease क्या है? This occurs when immunologically competent cells or their precursors are transplanted into immunologically compromised recipients. These transferred cells recognize the alloantigens of the host and attack the host. It is most commonly in hematopoietic stem cell transplant. ठीक है? When immune compromised recipients received hematopoietic stem cell preparation from allogenic donors, the immunocompetent T cells of the donor, they recognize the recipient's HLA as foreign and react against them. तो वही mechanism is again not clearly, but obviously it is linked to HLA. Clear नहीं है, but it is linked to HLA. So that's why HLA have to be matched before transplanting. Now direct damage and recipient lymphocytes in site to recipient lymphocytes पे immunodeficiency भी हो सकती है, डैमेज हो गए अगर सारे lymphocytes. ग्राफ्ट वर्सेस ओ डिजीज एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है. एक्यूट में तीन चीजें मिल रही हैं, मतलब डेज टू वीक, दो चीजें हैं, डेज टू वीक्स आफ्टर द ट्रांसप्लांट, और तीन ट्रायड है, डर्मेटाइटिस मतलब स्किन में चेंजेस आएंगी, इंटेस्टाइन्स में एंट्राइटिस और लिवर में हेपेटाइटिस. डर्मेटाइटिस, एंट्राइटिस एंड हेपेटाइटिस. स्किन में क्या है, जनरलाइज्ड रैश, डिसेकुमेशन, बुल्ले फॉर्मेशन, टोटल एपिडर्मस लॉस. फिर गट में क्या है, लिम्फोसाइट इन्फ्लेमेटेशन, तो लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन होगा तो क्रिप्ट एब्सेसिस बनेंगे, एपिथेलियल नेक्रोसिस, ब्लीडिंग हो सकती है. लिवर में बाइल डक्ट एपिथेलियल सेल्स में एपोटोसिस हो जाएगा, पोलिस्टेटिक हेपेटाइटिस, फिर इवेंचुअली कोलिस्टेसिस और हेपेटोसाइटो. क्रॉनिक में एक्यूट सिंड्रोम के बाद भी हो सकता है या फिर इंसिडेंटली. इसमें मोस्ट कॉमनली स्किन इन्वॉल्व है, उसमें स्किन, इंटेस्टाइन और लिवर इन्वॉल्व था. इसमें मोस्ट कॉमनली स्किन इन्वॉल्व है, लाइकन प्लेनस जैसी हो जाती है या फिर हाइपरट्रोफिक लूपस एरिथ्रोमेटिस की. एक्सटेंसिव क्यूटेनियस इंजरी, स्किन अपेंडेजेस की डिस्ट्रक्शन, योर hair insect glands, and fibrosis of the dermis, and the changes may resemble systemic sclerosis. कोलिस्टेटिक जॉन्डिस भी हो सकता है, जीआईटी में इसोफेजियल स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, और इम्यून सिस्टम टोटली डिप्लीशन ऑफ lymphocytes भी हो सकता है. रेकरेंट एंड लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ऑटोइम्यूनिटी. एंड सिक्का सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद 80% ऑफ द पेशेंट्स विद क्रॉनिक GVHD. बाकी डिफिकल्टी swallowing and mucosal ulceration with submucosal fibrosis and destruction of submucosal glands. रीनल वेस्कुलोपैथी हो सकती है, ब्रोंकोलाइटिस ओब्लिटरांस हो सकता है. बाकी इम्यूनोडेफिशिएंसी की वजह से साइटोमेगालोवायरस या निमोनिया के साथ इन्फेक्शन. ओके, दिस वाज द लास्ट स्लाइड. I hope you understood the topic that I was trying to explain it to you guys.